Hello students, I Sushma Kataria from Suraj School Bhiwadi, and today in this video we'll discuss about the 8th class 4th chapter Bipin Chaudhary's Lapse of Memory part 3 of it. The first and second part we have discussed in our video lecture as well as in our live classes. So let's start with it. As you know that in our first and second part we have discussed that Bipin Chaudhary never been to Ranchi, but Parimal Ghosh he met with him in a bookshop, and Parimal Ghosh shows some evidence and tell him some incident that he was there in Ranchi at that time at in 1858. Okay, so but Vipin Chaudhary completely don't have any kind of recall about it. That he said that I always want to be in Ranchi, but I never been there. Clear. So because of that reason, he forget everything about that thing, and he was completely assured that I never been in Ranchi. But the Parimal Ghosh, what kind of evidence he was showing to him, it shows that he was been there in Ranchi. Clear. So and one more thing, Mr. Dinesh Mukherjee also make him confirm that he was there in Ranchi. So because of that reason, in our second part we find that he was slightly uncomfortable. He was feeling sick, that he completely don't understand. He was not able to recall anything whatever happened in Ranchi, and he, according to Vipin Chaudhary, he said that I never been in Ranchi ever. Okay, so let's with the third part of this chapter. After lunch, Bipin Babu realized that he couldn't possibly carry on sitting at his desk and working. This had never happened in 25 years of his working with this firm. So, after knowing the confirmation from Dinesh Mukherjee that he was there in Ranchi at in 58, so he was feeling sick, and he said that आई हैव वर्कड इन दैट फर्म, जिस फर्म में वो काम कर रहे थे, वो वहाँ पे वो 25 ईयर्स तक उन्होंने काम किया, बट ही नेवर फाइंड दिस काइंड ऑफ सिचुएशन एवर इन हिज लाइफ. उनको कभी भी उस तरह की सिचुएशन अभी तक 25 ईयर्स तक कभी भी नहीं आई थी जैसा कि वो आज फील कर रहे हैं. आज ही वॉज स्लाइटली बींग अनकम्फर्टेबल बाय सिटिंग ऑन द डेस्क. बहुत थोड़ा उनको अनकम्फर्टेबल सी फीलिंग हो रही थी. ठीक है. ही हैड ए रेपुटेशन फॉर बींग उनकी एक रेपुटेशन है. कैसी रेपुटेशन है? टायरलेस, कंसिस्टिशियस वर्कर, एंड बट टुडे ही हैड हिज हेड वाज इन व्रिल. ओके, सो अभी तक उनकी जो पूरी जो रेपुटेशन है एज अ वर्कर, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्कर और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर के तौर पर उनकी जो इमेज बनी हुई है, रेपुटेशन मतलब इमेज बनी हुई है ऑफिस में. बट आज उनका जो सिर है वो हेडेक हो रहा है. मतलब इन अ वे वो ही वॉज स्लाइटली कन्फ्यूज्ड. उनका जो ही वॉज बीइंग कन्फ्यूज कि भाई वो क्या करे क्या ना करे, एंड ही वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट टू डू नाउ. बैक होम एट 2:30. ठीक है, 2:30 when he came back to home, Bipin Babu lay down in the bed and tried to gather all his wits together. Wits मतलब अपने जो सारे thoughts हैं वो सबको इकट्ठा लेके आ रहा था, because according to him वो कभी गया ही नहीं रांची. He knew that it was possible to lose one's memory through an injury in the head. क्लियर. अब उसको लगता है कि ये तो पॉसिबल है कि हो सकता है कि एक इंसान की मेमोरी चली जाती है, और उसको भी ऐसा लग रहा है कि भाई सभी कह रहे हैं कि मैं परिमल घोष भी कह रहे हैं, दिनेश मुखर्जी भी कह रहे हैं कि ही वॉज देयर इन रांची 1958. सो बट मे बी पॉसिबल माई हेड वॉज स्ट्रक विद समथिंग. मेरा सिर किसी चीज़ से टकरा गया, मुझे कोई चोट लग गई, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न आई फॉरगेट दैट एलिमेंट. ओके, बट ही डिड नॉट अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ समवन रिमेंबरिंग एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट. ठीक है. सो वो एक कहता है कि भाई मुझे ऐसा कोई इंसिडेंट ही याद नहीं आ रहा जिसमें मुझे ये लगे कि मेरे सर पे कोई चोट लगी थी, और रिसेंट कुछ ऐसा हुआ हो जिससे मैं 7 साल पहले का जो एक इंसिडेंट है मैं वो भूल गया. सो वो बहुत ही अनकम्फर्टेबल फील कर रहा था, दैट ही completely forget the things what the other person is saying that happen in his life. Okay, he fairly recent and significant one is that he had always wanted to go to Ranchi, to gone there, done nothing, and he not to remember was something
अटरली इम्पॉसिबल। अब उसको क्या लगता है कि वो हमेशा जाना चाहता था रांची, बट ही वॉज नॉट एबल टू, वो कभी गया नहीं है। और ऐसा जो एक कहते हैं ना कि जो इंसान जहाँ बहुत दिनों से जाना चाहता हो लेकिन और उसी के बारे में सारी चीज़ें भूल जाए, इट्स कम्प्लीटली इम्पॉसिबल अकॉर्डिंग टू बिपिन बाबू। क्लियर। सो उनको वो चीज़ डाइजेस्ट ही नहीं हो रही थी, उनको वो चीज़ पे वो भरोसा ही नहीं कर, रिलाई ही नहीं कर पा रहे थे कि ही फॉरगेट दैट इन पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड वेयर ही वांट्स टू गो फॉर अ लॉन्ग टाइम। At 7:30, Bipin Babu servant came and announced Chunni Babu here to say some important. Okay. So around 7:30, वो 2:30 पे अपने घर आया था. He was there in his bed, laying down and just thinking about all that things. He was not able to sleep properly because of the situation in his mind. And suddenly at 7:30 his servant came and servant जो है वो enter करते हैं रूम में, and he said that Chunni Babu was there to meet him. Chunni Babu आए उससे मिलने के लिए, वो कहते हैं there is something important. And now विपिन बाबू नो दैट चुन्नी हैड कम फॉर, उनको पता है कि वो क्यों आया था, हैड बीन एट स्कूल विद हिम। चुन्नी बाबू कौन थे? ही वॉज स्कूल फ्रेंड ऑफ विपिन बाबू। he had having a rough time lately and been seen home to about job. So यहाँ पे पता चलता है कि चुनीलाल उनके पास क्यों आए थे। ही वॉज हिज स्कूल फ्रेंड एंड ही केम टू आस्क फॉर अ जॉब। उनको लगता था कि विपिन बाबू एक अच्छी फॉर्म में काम करते हैं एंड ही कैन एबल टू हेल्प हिम टू फाइंड आउट अ जॉब। क्लियर। सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न चुनीलाल एवरी टाइम कभी ना कभी उनके घर में हमेशा आते रहते हैं। विपिन बाबू न्यू दैट इट वॉज पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम एंड इनफैक्ट ही टोल्ड हिम सो। अब वो कहता है कि वो उनको पता था कि वो इसके बारे में कुछ कर नहीं सकते, और उन्होंने उसको बता भी दिया था चुनीलाल को दैट आई एम नॉट एबल टू हेल्प यू इन एनी केस। चुनीलाल केप्ट टर्निंग अप लाइक अ बेड पैनिंग। लेकिन जो चुनीलाल है वो रेगुलर उनके घर में आते ही रहे थे, बार बार आ रहे थे, कि उनको लग रहा था कि शायद कभी ना कभी वो उनकी हेल्प ज़रूर करेंगे। ओके। सो यहाँ पे जो बिपिन बाबू है सेंट अ वर्ड, नॉट ओनली वॉज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नी नाउ बट नॉट इन सेवरल वीक। अब देखो यहाँ पे वो क्योंकि माइंड से वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था, पहले ही वो परेशान था अपने थॉट्स को लेकर, विचारों को लेकर। सो वो अपने सर्वेंट को कहते हैं कि अपने नीचे जाके ये बोलाओ कि आई एम नॉट एबल टू मीट विद हिम नाउ, और अभी कुछ हफ्तों तक मैं उससे मिलना नहीं चाहता हूँ, मिल नहीं पाऊँगा, मैं ऐसा कुछ कह दो उसको जाके। ठीक है। तो उसको लगता है कि मैं ऐसा उनको बोल देता हूँ। बट सून एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम ही स्टक विपिन बाबू दैट चुनीलाल माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट 58 ट्रिप। अब उनको क्या लगता है, क्योंकि चुनीलाल बार बार उससे मिलने आता रहता था, तो उसको लगता है कि क्यों ना, क्योंकि उसको लगता था कि चुनीलाल को हो सकता है कुछ पता हो 58 के ट्रिप के बारे में। सो देयर इज़ नो हार्म टू आस्किंग हिम, उनसे पूछने में कोई हर्ज नहीं है। विपिन बाबू हरिड डाउन द स्टेयर इनटू द लिविंग रूम एंड चुन्नी वाज अबाउट टू लीव बट सीइंग विपिन अपीयर टू राउंड होपफुली। अब देखो जैसे ही वो जाने वाला था, वो विपिन बाबू चुन्नीलाल को लगता है कि मैं अब चला जाता हूँ क्योंकि उन्होंने मिलने से मना कर दिया है। सो उसको वो तुरंत देखता है कि विपिन बाबू जो है बहुत जल्दी से नीचे आ रहे हैं, और जैसे ही वो जल्दी से नीचे आ रहा तो उसको लगा कि शायद आज उसकी जॉब की कोई ना कोई बात बन जाएगी। सो ही वॉज बीइंग होपफुल। जो चुनीलाल हैं जो वो होपफुल हो जाते हैं कि हाँ आज तो कुछ मुझे अच्छी न्यूज़ सुनने को मिलेगी, बिकॉज वो इतने अच्छे से आ रहे हैं। लिसन चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग। अब जब यहाँ पे जो विपिन बाबू हैं वो डायरेक्टली एक क्वेश्चन उनसे पूछ लेते हैं, कोई ऐसा नहीं कि हो तुम कैसे हो, किस तरह से आए, ये है वो है, उससे कोई और बात नहीं करते, डायरेक्ट उनसे एक बात पूछते हैं कि मुझे आपसे एक बात पूछनी है, क्या तुम्हें डू यू नो मेक मी अ लॉन्ग टाइम जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड डिड यू गो टू रांची इन डिड आई गो टू रांची। अब वो उससे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या तुम्हें 58 के ट्रिप के बारे में पता है, क्या तुम्हें याद है कि मैं कभी रांची गया था इन 58। चुन्नी साइड 58, इट मस्ट बी 58 और इट वॉज 59। अब यहाँ पे चुन्नीलाल फिर एकदम से उसको कंफ्यूज करता है कि ये 58 था या 59 के बारे में आप मुझसे पूछ रहे हो। सो यू आर श्योर दैट आई गो टू रांची। चुन्नी लुक इन अमेज एंड नॉट अनमिक्सड विद वरी। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि चुनीलाल भी उसको बोल देते कि हाँ यू आर देयर इन रांची इन 58, वो भी उसको कंफर्मेशन दे देते हैं। सो यहाँ पे वो एक कंफर्मेशन, क्या तुम्हें कहते तुम पक्का हो कि मैं वहाँ पे गया था। अब आप किसी अपने बारे में किसी और बंदे इंसान से पूछ रहे हैं, तो डेफिनेटली जो फ्रंट पर्सन है ही फाइंड स्लाइटली
अजीब सा, उसको अब्सर्ड सा लगता है वो चीज़, राइट. सो डी यू मीन्स हैव यू डाउट अबाउट हैविंग गॉन ऑल देयर. तो उसको लगता है कि यानी कि तुम्हें लगता है कि तुम वहाँ गए थे या नहीं गए, तो तुम्हें डाउट है इस चीज़ का. वो कहता है डिड आई गो, डू यू रिमेंबर क्लियरली, क्या तुम्हें जानते हो कि तुम वहाँ गए थे. तो चुन्नी सेट डाउन ऑन द सोफा, फिक्स बिपिन बाबू विद अ लॉन्ग हैड स्टेयर एंड सेड, हार्ड स्टेयर. अब वो देखो क्या करता है कि विपिन बाबू जो चुन्नीलाल है वो सोफे पे बैठ जाता है और उनको बहुत देर तक घूरते रहते, देखते रहते हैं विपिन बाबू को. अब विपिन, हैव यू टेकन ड्रग्स और समथिंग. वो कहते हैं तुमने कुछ नशा वशा किया है क्या. एज फार आई नो यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न. मतलब उसको लगता है कि तुम सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करके रखते हो, यानी कि आपके पास एक प्रॉपर एक अच्छी मेमोरी है, आप उन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके रखते हो आप जहाँ भी जाते हो. तो बट एटलीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी, यू कांट रियली मीन दैट यू फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप. वो कहते हैं यू हैव अ वेरी, अब चुन्नीलाल उसी को बोल रहे हैं कि आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है, तो आप भूल ही नहीं सकते हो उसके बारे में, रांची ट्रिप के बारे में. एंड नाउ हैड टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीलाल इनक्रीडियसली स्टेयर. इनक्रीडियसली का मतलब होता है कि बहुत ही उत्सुक तरीके से वो उनको घूरते जा रहे थे. डू यू रिमेंबर दैट माई लास्ट जॉब. अब चुन्नीलाल उनसे पूछता है कि तुम्हें पता मैं लास्ट कहाँ पे जॉब करता था. चुन्नीलाल उनसे पूछते हैं. ओके, सो ऑफकोर्स यू वर्कड इन अ ट्रैवल एजेंसी. तो वो कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ आप एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे. यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इफ़ इट वॉज आई हु फिक्स्ड योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची. अब देखो चुन्नीलाल ने भी एक इंसिडेंट बता दिया कि वो रांची गया था. वो कहता है कि मैं लास्ट जो मेरी जॉब थी, मैं एक ट्रैवल एजेंसी में काम करता था, ट्रैवल एजेंट था. एंड इट इज़ मी ओनली हु बुकड योर टिकट फॉर रांची. यानी कि वो रांची गया था, उसके बारे में वो उसने भी एक कंफर्मेशन दे दिया दैट यू हैव बीन रांची इन 1958. ओके, सो वेन टू स्टेशन टू सी ऑफ यू. अब वो कहता है मैं आपको स्टेशन छोड़ने भी गया था. एंड एक और इंसिडेंट के बारे में वो बताता है. वन ऑफ द फैन इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग, आई गॉट एन इलेक्ट्रिसिटी टू फिक्स इट. हैव यू फॉरगेटन एवरीथिंग, वट एवर इट इज़ मैटर विद यू, यू डोंट लुक टू वेल. अब देखो यहाँ पे क्या करता है, वो एक सारा इंसिडेंट उसको बता देता है. कहता है कि आपके जो कंपार्टमेंट था उसका एक फ़ैन वर्क नहीं कर रहा था, तो आई कॉल अ इलेक्ट्रीशियन टू फिक्स इट. उसको ठीक करने के लिए मैंने एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाया था. तो आप सारी चीज़ें कैसे भूल सकते हो, तो हो सकता है कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ है, तो तुम ठीक नहीं लग रहे हो, तो आई शुड लीव. अब यहाँ पे चुन्नीलाल जो है वो एक और कन्फर्मेशन दे के वो क्या करते हैं, वो उनको वहाँ से चले जाते हैं. ओके, so I have working too hard, he said at last. I must be a reason, must see you कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट. अब वो उसको यहाँ पे चुन्नीलाल जो है वो जाते जाते क्या कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत अच्छे से काम कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें एक स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है. स्पेशलिस्ट मतलब क्योंकि वो थोड़ा भूल चुका है अपने कुछ मेमोरीज़ को, वो भूल चुका है विपिन चौधरी. तो उसको लगता है कि आपको एक साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, आपको एक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए. Doubtless it Vipin's condition which made Chunilal leave without mentioning anything about his job. एक क्वेश्चन आएगा, why did Chunilal were not asked about anything about his job? Because उसको जो परिमल जो विपिन बाबू की जो कंडीशन थी मेंटली, ही वॉज नॉट स्टेबल, वो अनहैप्पी था. तो उसको लगता है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम हिम राइट नाउ, और इसलिए वो अपनी जॉब के बारे में कुछ भी बात नहीं करता और बिना बात करे वहाँ पे चला जाता है. अब चलता है परेश चंद्र. Paresh Chandra, he was a young physician. Physician मतलब doctor with a pair of bright eyes and sharp nose. Okay. He became thoughtful when he heard about Vipin Babu symptoms. Symptoms होते हैं लक्षण, किसी बीमारी के जो symptoms होते हैं ना, जैसे मान लो बुखार हो रहा है तो आपके शरीर या खांसी हो रही है तो गले में खराश होना, तो these called symptoms. Okay. So जब परेश चंद्र को उनकी symptoms के बारे में पता चलता है तो वो थोड़ा सा हैरान होता है कि ऐसा कैसे है, कि he was a very hard working person whose reputation is very good in the firm. and उनकी फॉर्म में कभी भी 25 साल के करियर में उसको कभी भी ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई कि वो भूल गया है चीज़ें. So it was very absurd kind of thing that he forget one particular days. ऐसा नहीं कि 1 घंटा 2 घंटा कुछ भूला, वो पूरा एक ट्रिप ही भूल गया. So it was a very difficult and a different situation for the doctor. Okay. Bipin Babu desperately, you must care
द हॉरिबल इलनेस आई कैन टेल यू इट्स अफेक्टिंग माई वर्क। तो वो अब यहाँ पे जो बिपिन बाबू है वो बहुत डेस्परेटली, बहुत उत्सुक तरीके से उसको बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें तो मेरा इलाज करना ही पड़ेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं ये जो मेरी, अगर मेरी ये इलनेस है जो यानी कि भूलने की जो बीमारी है, कहीं ना कहीं मेरे वर्क पे इसका इफेक्ट आ सकता है। सो यू हैव टू क्योर मी फॉर दिस। Now, Dr. Chand shook his head. You know what, Miss Chaudhary? He said, I never had deal with a case such as yours, frankly saying. अब वो कहता है कि मैंने ऐसा केस कभी देखा ही नहीं है कि एक इंसान सिर्फ एक इंसिडेंट अपनी लाइफ का भूल गया, एंड एवरीथिंग ही वाज रिमेंबर, बाकी सब उसको याद है। इट वाज क्वाइट आउटसाइड माय फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। मतलब मैंने आज तक ऐसा कोई केस एक्सपीरियंस नहीं किया है। बट आई हैव नो सजेशन, आई डोंट नो इट विल वर्क, बट वर्थ इट, ट्राई इट एंड डू इट। वो कहता है कि ऐसा हो सकता है कि ये काम भी करे, तो वो क्या सजेशन देता है उसको। एंड आई थिंक यू आर द सेम ओपिनियन, यू मस्ट हैव बीन टू रांची बट ड्यू टू सम अननोन रीज़न। ठीक है, वो कहता कभी आप गए होगे, ज़रूर रांची गए होगे, अननोन रीज़न पे गए होगे, इसीलिए आपको कुछ भी याद नहीं है। द एंटायर एपिसोड हैज़ स्लिप्ड ऑफ योर माइंड। मतलब उसको क्या लगता है, कहता है कि ना, अगर कोई आप बहुत ज़रूरी काम से गए होते तो डेफिनेटली आपको रांची के बारे में याद रहा होगा, और क्योंकि आप किसी इंपॉर्टेंट काम से नहीं गए थे इसीलिए आप सारी चीज़ें भूल चुके हो, रांची में कुछ भी आपके साथ हुआ था। ठीक है, तो इस एक तरह से उसको कंफर्टेबल करने की कोशिश करता है कौन, वो डॉक्टर। ओके, so what he said, what I suggest is that you go to Ranchi once again, and sight of the place may remind you about your trip. This is not impossible, more than what can I do for you for this moment। तो वो कहता है कि इससे ज़्यादा मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, आपको मैं एक सजेशन दे सकता हूँ, दैट व्हाट यू शुड डू, यू शुड गो आउटसाइड, यू शुड गो टू रांची वंस अगेन। आप दोबारा रांची जाइए, जब आप, हो सकता है इट कैन पॉसिबल कि आप जब वहाँ के दोबारा लोगों से मिलेंगे, वहाँ की जगहों को देखेंगे, तो शायद आपको कुछ ना कुछ ऐसा रांची से रिलेटेड कुछ याद आ जाए, तो आपको वहाँ पे जाना चाहिए रांची, टू रिकलेक्ट ऑल द थिंग्स, सारी चीज़ों को दोबारा याद करने के लिए। और फिर उसको एक टॉनिक भी देता है और एक दवाई भी देता है। ये ट्रैंक्विलाइजर जो है, इट्स अ मेडिसिन, यहाँ पे देखो मीनिंग भी लिखा हुआ है, मेडिसिन टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। ठीक है, उसको दूर करने के लिए। तो स्लीप एसेंशियल, और क्या देता है, देखो क्या क्या प्रिस्क्रिप्शन देता है कि आपको रांची जाना चाहिए। एक चीज़ सजेशन क्या देता है डॉक्टर, आपको रांची जाना चाहिए क्योंकि आप वहाँ की चीज़ों को देखोगे, लोगों से मिलोगे, तो शायद आपको सारी चीज़ें याद आ जाए। एक सेकंड उसको कहता है कि आपको सोना बहुत ज़रूरी है, आपके यानी कि माइंड को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है, हालांकि वो थोड़ा मुश्किल है, बट यू हैव टू। थर्ड पॉइंट, वो उनको एक सिरप, एक टॉनिक देता है जिससे कि जो माइंड का स्ट्रेस है वो कम हो जाए। ठीक है। Bipin Babu felt somewhat better than next morning, and after breakfast he rang up his office। ठीक है, अब उसने क्या किया, अगले दिन सुबह में जब वो डॉक्टर वगैरह से मिल लिया, चुनीलाल से मिल लिया, तो उस अगले दिन वो क्या करता है, सुबह उठता है, थोड़ा सा लाइट फील करता है, उसको लगता है कि नहीं, अब मुझे क्योर मिल गई है मेरे इलनेस की, तो मैं डेफिनेटली उसको करूँगा। तो वो क्या करता है कि स्टार्टिंग में वो अपने ऑफिस में कॉल करता है, सारी जो चीज़ें हैं, सारी चीज़ों को डील करता है, यानी कि बता देता है क्या उसके साथ है कंडीशन। सो व्हाट ही डिड, ही टेक फर्स्ट क्लास टिकट इन द सेम इवनिंग एंड मूव टूवर्ड्स रांची, और वो रांची के लिए निकल जाता है। सो दिस इज़ योर थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। आई होप यू कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एंड द थिंग्स। कुछ जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट डाउन इन योर फेयर नोटबुक। क्लियर? थैंक यू।